नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार है जारी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत रॉय पर किया गया हमला, अस्पताल लाए गए। चुनाव के बाद हिंसा के बाद बेघर हुए लोगों की करा रहे थे घर वापसी। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज के भंडारीगंज इलाके में बेघर भाजपा कार्यकर्ताओं को वापस घर लौटाने के दौरान जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत रॉय पर हमला किया गया। इस घटना में भाजपा के 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायल सांसद समेत भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में सांसद जयंत रॉय ने कहा कि उनके कुछ कार्यकर्ता लंबे समय से बेघर है, उन्हें अलग अलग स्थानों में रखा गया था। वे लोग इन सब की घर वापसी का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा तृणमूल समर्थित बदमाशों ने उन्हें खतरा था। उन्होंने कहा इस बारे में पुलिस से संपर्क करने के बाद पुलिस ने बेघर लोगों को घर लौटाने के लिए आज का समय दिया। इसी के अनुरूप पुलिस वैन के साथ वे लोग बेघर लोगों को उनके घर पहुंचाने जा रहे थे। अचानक भंडारीगंज इलाके में पुलिस वैन उनका साथ छोड़ दिया। इसी दौरान टीएमसी के 40 से 50 गुंडे उन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 भाजपा के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें भी चोटें आई है। ঘটনাটা হলো যে 39 জন তৃণমূলের অত্যাচারে 2 তারিখের যখন ফল ঘোষণা হয়, ফল ঘোষণা পরের থেকেই টোটাল 39 জন বাড়ি ছাড়া হয়ে যায়। যেমন গধেয়াগঞ্জ, তারপর ভান্ডারীগঞ্জ, তারপরে ভুতকি, তারপরে আকারিগঞ্জ, এই সমস্ত এলাকার টোটাল 39 জন সবাই শরণাপন্ন হয় আমার কাছে। আমি বিজেপির ব্লকের কোষাধ্যক্ষ, যার জন্য শরণাপন্ন হয়। তখন আমি তাদেরকে রাখি এই 1.5 মাস ধরে। তাদেরকে রাখার পরে আজকে আমাদের আমবাড়ি বড়বাবু ফোন করে বলেন যে গোপালবাবু, আমাদের সব কিছু দিক দিয়ে কথাবার্তা কমপ্লিট হয়ে গেছে। 4টার সময় আমরা রেস্কিউ করে পুলিশ স্কট দিয়ে সবাইকে নিয়ে যাব, আপনি সবাইকে নিয়ে আসেন। আমি বললাম কোথায় যাব? বললো যে আপনি ক্যানাল মোড়ে আসেন। ক্যানাল মোড়ে নিয়ে গেলাম, সঙ্গে আমাদের এমপি জয়ন্ত রায় উনিও ছিলেন। তারপরে রেস্কিউ করে নিয়ে যাচ্ছিল ভান্ডারীগঞ্জের যে মুখ, সেই মুখের রাস্তা পর্যন্ত ভ্যানটা ছিল। তারপরে আমরা আগে গেলাম। ভ্যানটা বললো যে আপনারা আগান, আমরা যাচ্ছি। আমরা আগায় গেলাম। গিয়ে যাওয়ার পরেই প্রায় গ্রাম শুদ্ধ আমাদেরকে ঘিরে এমনভাবে অত্যাচার শুরু করলো, বাঁশ লাঠি। তারা দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি ছাড়া, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছিল। তো আমরা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম তাদেরকে বাড়িতে ফেরানোর জন্য, কিন্তু আমরা কোনোভাবেই প্রশাসনের সহযোগিতা পাচ্ছিলাম না বলে আমরা দুর্গতে সাহায্য পাচ্ছিলাম। কারণ ওরা ঢুকলেই তাদের উপর অত্যাচার হবে। ওখানকার গ্রামবাসী যে টিএমসির যারা লোকজন, তারা বলছিল ওদেরকে বাড়িতে ঢুকতে দেবো না এবং ঢুকলেই ওদেরকে মারবো। তো এটা ওদের ইন্টেনশন ছিল। যাই হোক, ইতিমধ্যে হাইকোর্টের একটা অর্ডারও বের হয়, আপনারা সবাই জানেন। তাতে বলা হয়েছে যে সমস্ত বাড়ির
বাইরে যে সমস্ত আছেন তারা যেন বাড়িতে ঢোকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। এবার পুলিশের সাথে আমরা কথা বলি, আবার কথা বলার পর তাদেরকে বলি যে আমাদের ঢোকানোর ব্যবস্থা করে দেন এই সমস্ত কর্মীদের। এবার তখন আমাদেরকে বলে আজকে ডেট দেওয়া হয়, বলে যে ঠিক আছে আপনারা ঢোকাতে পারেন, 4টার সময় আমাদের পুলিশ ভ্যান থাকবে, পুলিশ থাকবে, ওদেরকে স্কোয়াড করে নিয়ে যাবে, ওদেরকে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। আমিও যাব, সেটাও বলি ওদেরকে। সেই অনুযায়ী ওরা আমাদেরকে এনশিওর করে যে আমরা পুলিশ ভ্যান যাচ্ছে, আপনার জন্য আলাদা করে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করছি। কোথায় হয়েছে এবার এটা হয়েছে ভান্ডারিগঞ্জ। এবার ভান্ডারিগঞ্জ ঢোকার মুখে প্রায় 1-1.5 কিলোমিটার দূরে, আমি এক্স্যাক্ট মাইলেজটা বলতে পারবো, কিলোমিটার তো বলতে পারবো না, 1.5-2 কিলোমিটার দূরে পুলিশ ভ্যানটা থেকে যায়। দেখি যে পুলিশ ভ্যানটা আমাদের পেছনে আসে না, অন্যান্য যারা মানে আমাদের কর্মী শুধু তারাই আসে, পুলিশ কিন্তু ওখানে থেকে যায় আর আসে না। ইতিমধ্যে যখন ভান্ডারিগঞ্জে যখন ঢুকে যাই, সেই সময় ভান্ডারিগঞ্জে ঢোকার কয়েকজনকে যখন ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, সেই সময় হঠাৎ করে টিএমসি আসছি তো প্রায় 50-60 জন বা তার বেশি হতে পারে, নাম্বারটা তো ওইভাবে গোনা সম্ভব না, একটা মব, অল আর টিএমসি গুন্স, তারা আমাদেরকে অ্যাটাক করা শুরু করে। ইতিমধ্যে আমি একজনকে বাড়িতে যখন ঢোকাচ্ছিলাম, ঢুকিয়ে তারপর শুনি যে মারধর হচ্ছে, তারপর ওখান থেকে বের হয়ে দেখি একজন ওকে ভীষণভাবে বাস দিয়ে মারছে। कोरोना लगातार छीन रहा है धरती के भगवान। 719 डॉक्टरों की गई जान, 111 ने तो सिर्फ बिहार में गंवाई है जान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी बनी हुई है। हालांकि इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत धीमी और हल्की हो चुकी है। इतना ही नहीं, मंगलवार से लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के दैनिक संक्रमित मामले 1 लाख से कम आए हैं। हालांकि दैनिक मौत के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं कोरोना वायरस से जंग में सबसे आगे खड़े डॉक्टर्स किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इस दौरान चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों समेत कई फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जान भी गंवाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 719 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई। इनमें बिहार में सबसे ज्यादा 111 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद दिल्ली में 109 डॉक्टर्स की मौत हुई है। घर वापसी के बाद मुकुल रॉय को राज्यसभा भेज सकती है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल में घर वापसी कर चुके मुकुल रॉय को पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों में मुकुल रॉय विधायक पद से इस्तीफा देंगे। मुकुल भाजपा के टिकट पर कृष्णनगर दक्षिण से विधानसभा चुनाव जीते थे। अब उनकी दूसरी पारी तृणमूल कांग्रेस में शुरू हो चुकी है, तो पार्टी उन्हें दोबारा राज्यसभा के टिकट पर संसद भेजने की तैयारी में है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जल्द स्थितियों को देखते हुए मुकुल रॉय को जिम्मेदारी दी जाएगी। कोरोना मरीजों के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा मारवाड़ी युवा मंच। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य कोरोना मरीजों के घरों में रात्रिकालीन ऑक्सीजन परिसेवा प्रदान कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य मोहित अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन की शुरुआत से वे लोग इस्लामपुर शहर के लोगों को विभिन्न सेवा मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के परिवार वालों को अस्पताल जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ता है, पर जिनके घरों में बुजुर्ग लोग रहते हैं अथवा जिनके घरों में बाहर जाने वाले लोग उपलब्ध नहीं है, वैसे घरों में वे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन लोगों ने एक वकील की मां को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके घर वालों ने उन्हें फ़ोन किया, वे लोग तुरंत उनके घर में पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। আমাদের অক্সিজেন ব্যাংক থেকে বেনিফিট পেয়েছেন, আমাদের সার্ভিস পেয়েছেন, আর আমরা গর্বিত আমরা এই সার্ভিসটা দিতে পারছি মানুষকে। হ্যাঁ, আজকে এটাকে প্রসেস থেকে বাইরেই বলা যায়, যেহেতু পরিস্থিতি এমনই ছিল। যা আমাদের যে এখানে ইসলামপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী আছেন শ্রী করুণাময় দাস মহাশয়, তো ওনার বাড়িতেই প্রয়োজন ছিল ওনার মায়ের, ওনারা দুজনই বৃদ্ধা। তো উনি ফোন করলেন 9টার দিকে যে এমন এমন পরিস্থিতি, কোনো ব্যবস্থা হবে? মানে হ্যাঁ অবশ্যই হবে। আমি মোহিতকে ফোন করলাম,
মোহিত আর আমি দুজন মিলে একটা সিলিন্ডার ওনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গর্বিত মনে করছি নিজেকে। ভালোই লাগছে। আমরা আমাদের অক্সিজেন ব্যাংক বিগত প্রায় 1 মাস ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আমাদের যেরকম নর্মাল সিস্টেম হচ্ছে পেশেন্ট পার্টি নিজে আমাদের অফিস থেকে গিয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু আজকের এই ঘটনাটা মানে ওনার করুণ স্যারের বাড়িতে করুণ স্যার আছেন, ওনার ওয়াইফ আছে, দুজনেই এজেড, আর ওনার মায়ের অসুস্থতা হচ্ছিল। তো তিনি আমাদের মেম্বার সঞ্জয় করুয়া দাদাকে ফোন করেন, সঞ্জয় দা আবার আমাকে ফোন করেন। তখন আমরা দুজনে কাঁধে করে বাইকে করে অক্সিজেন সিলিন্ডারটা নিয়ে আসছি। আর এমনি আমাদের যে প্রসেস যে আমরা পেশেন্ট পার্টি আমাদের অফিসে গিয়ে সিলিন্ডার নিয়ে আসে, কিন্তু এখন এই কেসে ওনার বাড়িতে এইরকম কেউ ছিল না যে গিয়ে নিয়ে আসবে, তখন আমরাই ওনার বাড়িতে এসে অক্সিজেন সিলিন্ডারটা পৌঁছে দিলাম। মেসেজ এটাই দেবো যে এখনও করোনার ওয়েভ যেটা চলছে, সবাই এখনও ঠিকমতো সুস্থ হয়নি। সবাই বাড়িতে থাকুন, অপ্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোবেন না, মাস্ক পরুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, সরকারি নির্দেশিকা পালন করুন। সবাই আমরা যদি সরকারি নির্দেশিকা পালন করে চলি, এই ওয়েভ তাড়াতাড়ি আমরা করোনাকে মোকাবিলা করতে सक्षम हो। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। 70 दिनों के बाद देश में सबसे कम कोरोना केसेस आए। मरने वालों की संख्या अब भी 4000 के पार। कोरोना महामारी का ग्राफ देश में अब लगातार गिर रहा है। देश में आज 70 दिनों के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम केसेस आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 84,332 नए कोरोना केसेस आए और 4002 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 1,21,311 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, यानी कि बीते दिन 40,981 एक्टिव केसेस कम हुए। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,466 केसेस दर्ज किए गए थे। आज देश में लगातार 30वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई। 11 जून तक देश भर में 24 करोड़ 96 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 34,33,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 37 करोड़ 62 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.24% है, जबकि रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। जलपाईगुड़ी में सुबह से झमाझम बारिश। लॉकडाउन के बीच बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जलपाईगुड़ी जिले में शनिवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। जिले के विभिन्न हिस्सों में सुबह से बूंदाबूंदी के साथ बारिश जारी है। आज सुबह अचानक आसमान में बादल छा गए और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिन चढ़ने के साथ ही जलपाईगुड़ी शहर में छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रहा। झमाझम बारिश से सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। एक तरफ जहां पूरे राज्य में लॉकडाउन जारी है, वहीं दूसरी ओर बारिश से आम लोग बेहाल है। सड़क सुनसान है। लोग छाते के साथ बारिश में इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। অন্ধকার এখন তো হাওয়া বৃষ্টিও না হচ্ছে, হাওয়া হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, জোরে তো হইতে ছাতা নিয়েও ভিজে যাই, অসুবিধা হবে না, ভিজে যাই। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा रद्द होने से हताश और निराश है विद्यार्थी और अभिभावक। कोविड-19 संकट के कारण पिछले करीब 1.5 साल से सभी शिक्षण संस्थान बंद है। इस संकट के कारण अधिकतर परीक्षाएं पिछले साल भी रद्द कर दी गई थी और उम्मीद थी कि इस साल बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं रद्द कर दी। परीक्षाओं के रद्द होने से काफी संख्या में मेधावी विद्यार्थियों और उनके अभिभावक निराश है। विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष परीक्षा के लिए मेहनत की थी ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में कई बड़े और नामी स्कूल है। इन सभी स्कूल के विद्यार्थियों ने उच्च माध्यमिक के लिए काफी तैयारियां की थी, लेकिन बोर्ड परीक्षा रद्द होने से सब मेहनत पानी फेर गया है। उनको लग रहा है कि अब वे अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो परीक्षा देने के बाद उनको प्राप्त हो सकता था। নিঃসন্দেহে এবছর যে পরিবেশ পরিস্থিতি আছে, তো সেই নিরিখে বলতে পারি যে হ্যাঁ, আমাদের এবার রাজ্যে স্থান পাওয়ার মতো কি মাধ্যমিক কি উচ্চ মাধ্যমিকে ছেলেরা ছিল আছে। তো পরীক্ষা না হওয়াতে এদিক থেকে রায়গঞ্জবাসী বলি, অভিভাবক, ছাত্র বা আমাদের বিদ্যালয় পক্ষ থেকে একটা নিশ্চয়ই খুব হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপার। আবার অন্য পক্ষে দেখলে পারে যে এই কোভিড-19 পরিস্থিতিতে সুরক্ষার স্বার্থে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকে কথা বললে পারে। আবার সেক্ষেত্রে আমাদের এবার যে রায়গঞ্জবাসীর আবেগ,
সে আবেগটাকে আমাদের একটু চেপেই রাখতে হচ্ছে, আমার নিরুপায়। এবং এক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশকে মেনেই নিতে হবে। এবছর আমরা আমাদের যে স্থান বা আমরা যে একটা জায়গায় পৌঁছই প্রতি বছর, কারণ এটা আমাদের একটা ট্র্যাক রেকর্ড। আমাদের বিদ্যালয় কি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক একটা মানে একাধিক স্থান থাকে, এটা এবার আমরা দেখাতে পারছি। আমার নাম অঙ্কুশ সিংহ। কোন ক্লাস? আমি ক্লাস 12-এ এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেবো। তো এই যে পরীক্ষাটা হলো না, কীভাবে দেখছো? সারা বছর খেটেছিলাম এই করোনার মধ্যেও আর কি, অনলাইন ক্লাস স্যারদের থেকে। তারপরে এই বছর আর কি এইচএসে একটা কিছু করার আশা ছিল, তারপরে স্যাররাও আশা রেখেছিল। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেছিলাম, তো সারা বছর খাটলাম। এখন হঠাৎ করে এখন লাস্টে আর কি এসে বলা যে পরীক্ষা হবে না, তো আর কি ওটা একটু আর কি কনফিউজ আছি এখনও আপাতত। আর এই যে যেভাবে আমাদের আর কি কোনো ইন্টারনাল এক্সামও হয়নি, তো এভালুয়েশনটা কী করে হবে এটা একটা প্রশ্ন। তাই কলেজ পাওয়াটা একটা মুশকিল হয়ে যেতে পারে, কেন কি সবাই যদি একটা অ্যাভারেজ নাম্বার পায় সেক্ষেত্রে আর কি। এবার আশা করেছিলাম যে একটা ভালো রেজাল্ট হবে, অ্যাটলিস্ট মাধ্যমিকের মতো না হোক, তার থেকে একটু বেটারই করার চেষ্টা করতাম। তো সেটাই খারাপ তো লাগছেই, কেন কি সারাটা বছর খাটলাম, তারপরে অনেক টিউশনে দৌড়াদৌড়ি, এইখান থেকে ওখানে যাওয়া, নোটস, তারপরে পড়াশোনা আর কি, সব মিলে একটা আর কি সারা বছরের যে খাটনিটা থাকে সেটার দাম না পেলে তো একটু কেমন লাগে। इटहर से आई है दुखद और मर्माहत करने वाली घटना। नदी में नहाने गए 3 बच्चों में से 2 की हुई मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटहर थाना के मरनाई ग्राम पंचायत के विश्वपुर गांव के रहने वाले 3 बच्चे महानंदा नदी में नहाने गए थे, लेकिन तीनों ही नदी की गर्भ में समा गए। हालांकि इनमें से एक बच्चे को बचा लिया गया, मगर 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में दुख की लहर फैल गई है। मृतक 2 बच्चों के नाम इमाम हुसैन और इकबाल हुसैन है। मृतकों की दीदी फरदौसी खातून, जिसको बचाया गया है, उसको इटहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस दुखद घटना की खबर मिलते ही इटहर के नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोशर्रफ हुसैन मौके पर पहुंचे। साथ ही इटहर थाने की पुलिस भी भारी संख्या में पहुंची। पुलिस ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। इटहर के नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोशर्रफ हुसैन ने बताया कि यह काफी दुखद घटना है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनको इस घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत स्पीड बोट और नाविकों की व्यवस्था कर दी, लेकिन इससे पहले ही ग्रामीणों ने बच्चों को नदी से निकाल लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में वह पीड़ित परिवारों के साथ है। আমাদের মান্নাই অঞ্চলের কৃষ্ণপুর গ্রামে মহানন্দা নদীতে আজকে দুপুরবেলা একই পরিবারের 2 8 বছরের শিশু ছেলে এবং একটা মেয়ে, তারা স্নান করতে গিয়েছিল। ওখানে মণি আছে আর জলের স্রোতও ছিল, সেখানে সবাই বাড়ির লোক জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়েছিল। তারা ওই জলের স্রোতে ওই মণির কাছে পড়ে যাওয়াতে 2 ছেলে 8 বছরের একই পরিবারের 2জনে মারা গেছে। একজনকে উদ্ধার করা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমরা এসেছিলাম, পুলিশ বাহিনী থেকে ডিএমপি থেকে সবাইকে ডাকা হয়েছিল। তারপরে একটা ছেলেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ার পর আমরা বসেছিলাম, তদারকি করছিলাম, দেখছিলাম। তারপরে আবার একটা মৃত ছেলেটাকে পাওয়া গেল, মানে 2জনেই মৃত, 2জনকে পাওয়া গেছে আর মেয়েটাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।